ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج کل بعض گشت میں یہ بات ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, اس کے متعلق کوئی بات کی جائے. لوگ اصرار بھی کرتے ہیں کہ اس متعلق بات ہونی چاہیے, ڈسکورس ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ جناب بجٹ میں کیا ہوگا. میں نے کوشش کی بہت دفعہ تاجر صنعت کاروں سے اس موضوع پر بات کروں. بھلے انہوں نے گاڑیوں کے متعلق مجھے بہت بتایا کہ نئی گاڑیاں کہاں سے خریدی جا سکتی ہیں, کس طرح کی ہو سکتی ہیں. دعوتوں کے متعلق بہت بتایا کہ دعوتوں کے لیے کیا بہتر رہتا ہے. خوابوں کے بارے میں بہت بتایا, تالیوں کے بارے میں بہت بتایا, تعارف کے بارے میں بہت بتایا, تصویروں کے بارے میں بہت بتایا. لیکن بتایا جو نہیں بتایا وہ بتایا بجٹ کے بارے میں نہیں. مجھے کچھ بھی, میں پوچھتا رہ گیا, ہاتھ جوڑتا رہ گیا, بھائی مجھے بتاؤ بجٹ میں کیا آئے گا. آپ کے ذہن میں بجٹ کے لیے کیا جو ہے وہ آپ کی تجاویز ہیں, کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو ٹیکس رجیم آئے گی وہ کیسی ہوگی, آگے آنے والا فائنینس بل کیسا ہوگا, کیا مانوس کیا آپ نے لا میکرز کو کہ وہ اس طرف راغب ہوں. لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا. آج کوشش کروں گا کہ جواب ضرور لوں, اور اسی لیے میں نے آج بڑے سنجیدہ مہمان کو بلایا اپنے پاس. جناب مفسر عطا ملک صاحب پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر کے, اور ان کے ساتھ میں بات کروں گا بجٹ کے متعلق. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. بھائی آپ تو روٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو منانا میرا کام تو ہے نہیں. 2 سال سے آپ لوگ روٹھ گئے, آپ لوگوں نے تجاویز دی نہیں, بیوروکریسی خوش ہے, گورنمنٹ کو پرواہ نہیں. تو سر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ کو ان کو اپنی بات منوانی تو ہے, کیونکہ کراچی کا چیمبر جو ہے یہ پاکستان کا بڑا چیمبر ہے. فیڈریشن کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے چیمبر کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, کیا آئے گا بجٹ کے اندر, کیا تحفظات ہیں, کیا تجاویز ہیں, ایٹ لیسٹ آن دا سرفیس آف اٹ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ علی, اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ پی ایم ایل این نے گورنمنٹ فارم کی اور پہلا بجٹ اپنا پیش کیا جو بہت سخت بجٹ تھا, تو ہم نے آبجیکٹ کیا. وی ور دی اونلی چیمبر ان پاکستان جس نے آبجیکٹ کیا کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے جن تاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں سب نے اس کو بہت ویلکم کیا, اور بعد میں ان کو پتہ چلا, جب آج 4-5 سال کے بعد پتہ چلا کہ معیشت کو کتنا نقصان پہنچا. آج سب لوگ کہتے ہیں کہ جی بجٹس غلط آئے, پچھلے 4 سخت آئے ہماری اکانومی کے لیے. ٹیکس کلیکشن کرنا ضرور گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن ہراسمنٹ سے کلیکشن کرنا تو نیگیٹو ایفیکٹ دیتا ہے. ہم یہی کہتے رہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو ریلیف دیں, بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیا جائے. آپ ان لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں ایمنیسٹی کی شیپ میں جنہوں نے کبھی ٹیکس دیا ہی نہیں. That means you do not favor amnesty scheme in its essence. Well, in its current form we do not accept that. یعنی آپ اس میں بہت چینجز کی ضرورت ہے. اس میں ان لوگوں کو کور دینے کی کوشش کی گئی ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشنز کورڈ نہیں ہیں, پولیٹیشنز کی ڈپینڈنٹس کورڈ نہیں ہیں. کون سے ایسے مین پولیٹیشنز ہیں جن کے بچے اس وقت ان کے ڈپینڈنٹ ہیں؟ تمام بچے مین جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں جن کو بیسکلی کور کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان, ان کے تمام بچے جو ہیں ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہیں. آپ اس میں کیوں نہیں کلوز ریلیٹیوز کو بھی شامل کرتے ہیں؟ نہیں کیا آپ نے. وہ تو ان کی مرضی, جب چاہیں کفالت میں لے لیں, جب چاہیں مطلب کہیں کہ یہ زیر کفالت نہیں ہے. اس پہ نہیں, نام تک بدل لیتے ہیں لوگ, اپنے نام تک بدل لیتے ہیں سیاست. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا بیکاز اٹس اے پولیٹیکل اینگل ٹو اٹ. صرف ایمنیسٹی کی جہاں تک ہم بات کر رہے تھے, وہ اس میں میرے 2-3 اور پوائنٹس بھی ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے ایف بی آر کو یہ اجازت دے دی کہ اگر کوئی ڈیکلیریشن کر ہی رہا ہے, فرض کیجئے ٹیکس بھی پے کر رہا ہے, اور پھر آپ ایف بی آر کو رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈیکلیریشن کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. سر پاکستان کے اندر بزنس مین کا سب سے پرائمری جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہی مظلوم ہوں. جو جدی پشتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی نظروں میں نہ ہو. اب آپ کاغذ میں یہ لکھ کر دو گے کہ ہم اربوں پتی ہیں, ہم سے لو ٹیکس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. میں اور لوگوں کو بھی بلاتا ہوں, مختلف طبقات کے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں صاحب بہت اچھی اسکیم ہے. میں نے کہا آپ بتانے کو تیار ہو کہ آپ اربوں پتی. لوگ تو یہاں پہ اربوں پتی بھی خود کو کہتے ہیں, صاحب میرا تو چھوٹا سا کاروبار. لیکن بہت اچھی اسکیم جو لوگ کہتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی انکم کو کنسیل کیا ہوا ہے, یا جن کے ٹیکس ریکارڈز پراپر نہیں ہیں. جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے, جس نے سالہ سال ملک کو ٹیکس کی شیپ میں ریونیو دیا, اس کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو تو ٹیکس کیا گیا ہر سال, لیکن Let me expand on this conversation, کیونکہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ لوگ جو سالہ سال سے
लगे हुए हैं जनाब, टैक्स भर रहे हैं, गोशवारे जाके भर रहे हैं, वो आखिरी तारीख आती है, दौड़ें लग जाती हैं उनके दफ्तर में, तो उन बेचारों के साथ क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? खैर, इस बारे में बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब गुफ्तगू करेंगे हम बजट के मुतालिक, लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ कि एक पाकिस्तान का जो चेंजिंग नैरेटिव रहा है, ख़ास तौर पे सोशियो इकोनॉमिक तौर पर अगर आप देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स को देखते हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनेमिक्स को देखते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी को उसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं जब यंग था, बिल्कुल बच्चा, आप समझिए यंग क्या, बच्चा था, तो तब मर्द मोमिन मर्द हक हुआ करते थे, ज़ियाउल हक साहब इस मुल्क के सदर। तब अमेरिका हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता था, हमारा मामू होता था, अब तो हमें मामू बना गया। उस ज़माने में फिर कुछ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनेमिक्स थी, फिर वी हैव बीन ट्रांजिशनिंग, फिर उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा घुटरू गूँ, फिर वो भी आपको पता है कि अब तो आखिरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रह गई थी उनकी, उम्मा वालों से शायद हमने $1.5 अरब पकड़े थे, फिर उनका काम नहीं करके दिया। अब सुना है कि वो भी छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह अब जो कुछ बच जाएगा वो शायद रूस जगह ले लेगा। ये वही रूस है जिससे हम बात करने को तैयार नहीं थे और इनकी खातिर अफ़गानिस्तान गए और फिर अपने मुल्क में कलेक्शन कोप और चर्स कल्चर लेकर आए। इस चेंजिंग नैरेटिव की वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पर जितना नुकसान हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे मुस्तकबिल में, लेकिन आज बजट तक महदूद रखते हैं। जनाब मुफस्सिर अता मलिक साहब, अब मेरे जहन में जो सवाल है वो ये है कि ये बजट आने वाला है, लॉलीपॉप बनाने वाले ने ही बनाया है बजट, मीठा भी होगा लॉलीपॉप जैसा, कैसा लगता है आपको? बड़ी खूबसूरती से आपने चाइना को मिस कर दिया, वो ट्रायो जो अभी आपने बनाई रशिया तक। सर जा रहा था वहाँ, कुछ मजबूरियों की वजह से रुक गया। चले, बजट पे जो आपने लॉलीपॉप का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आखिरी मौका है गवर्नमेंट के पास कि जो उन्होंने 5 सालों में गलतियाँ की, टैक्स स्ट्रक्चर का जो बेड़ा गर्क किया, जो उसकी शक्ल बिगाड़ी, उसको बेहतर कर लें और उसको रिजॉल्व कर लें, अभी करके जाएं, अपना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके जाएं। डिस्क्रेशनरी पावर्स बेतहाशा दे दिए और ग्राउंड लेवल पे आप उन डिस्क्रेशनरी पावर्स का फ़ायदा आपको कितना हुआ, इन्होंने तो कहा हमने एलिमिनेट कर दिया डिस्क्रेशनरी पावर। नो, रियलिटी इज़ दैट यू क्रिएटेड सच अ मेस एट द ग्राउंड लेवल कि आपको मुल्क की किटी को कितना फ़ायदा हुआ। ऑफिसर्स की पर्सनल किटी को तो फ़ायदा हुआ होगा उस डिस्क्रेशनरी पावर्स का, लेकिन मुल्क को कोई खातिर-खा फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो मैं तो चाहता हूँ कि डिस्क्रेशनरी पावर्स को ख़त्म करें, एडिशनल ड्यूटीज़ को ख़त्म करें, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ख़त्म करें, जो आपने इनकन्सिस्टेंसी की भी है टैक्स लॉज में, उनको रैशनलाइज करके जाएं। एक बच्चा सुबह स्कूल जा रहा था, मैंने दूर से देखा, उसकी माँ ने उसे दुआ दी, बेटा बड़े होकर तुझे FBR में नौकरी मिले। आगे आप खुद समझ जाएं, कितनी अच्छी दुआ देखे मांगी, यानी ज़िंदगी भर के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी तू कमा। पहले दुआएं देते थे, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, तू फौज में जा, इधर जा उधर जा, अब FBR की दुआ दी। लेकिन अवाम के लिए तो अच्छी दुआ नहीं मांगी ना कि अगर FBR में बिठा दिया तो बच्चा अवाम को तंग करेगा। इशू ये है कि इस वक्त जो है स्ट्रक्चर जो चेंज कर दिया है, आपने मिनिमम एग्री किया हुआ था कि कस्टम्स ड्यूटी को हम ले आएंगे 20% पे, अब आपने 20% चलें फ़र्ज़ कीजिए किसी आइटम पे ड्यूटी लगाई, कस्टम्स ड्यूटी, फिर आपने उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगानी शुरू कर दी, फिर आपने रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाती है। तो ऐसी टैक्स रेजिम्स को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसी रेवेन्यू पॉलिसीज़ को आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये लोग कहेंगे कि आप डिक्लेयर कर दो और आप डिक्लेयर कर देंगे, और आप पहले इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि एक दवा आप खाया करते थे GST, फिर उसके बाद दूसरी दवा जो है नई पैकिंग में आई RGST, और कितने पढ़े लिखे शख्स थे, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने आपको वो दवा दी RGST, आपने वो खा ली। आज आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये लोग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे वो आपकी फेवर में जाएंगी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यू हैव टू गिव अ कमेंट। दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ये लास्ट उनके पास मौका है इलेक्शन से पहले। जो भी इस वक्त आपको चेंजेस नज़र आएंगी, वो मेरा अपना ख्याल ये है कि सिर्फ इलेक्शन ईयर होने की वजह से नज़र आएंगी। अगली गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन करती है या नहीं करती है, वो बाद की बात है। देयर एक्शन सजेस्ट कि वो दे वांट टू टेक अ रेस्ट।
देयर एक्शन सजेस्ट, जो कुछ ये कह रहे हैं उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ए रेस्ट। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दैट अ गवर्नमेंट विच इज़ इंसिस्टेंट दैट दे आर नाउ आउट गोइंग, वो किस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके जाएंगी, मैं नहीं कह रहा, तजियाकार कह रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बजट के मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन बजट के मुतालिक बात करें और ख़ास तौर पर सनतों के मुतालिक बात न करें तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। मुफस्सिर अता मलिक साहब जो कि प्रेसिडेंट है KCCI के, वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मुफस्सिर साहब, बुनियादी तौर पर कराची जो है वो एक बिज़नेस हब है पूरे पाकिस्तान का, और इंडस्ट्रीज़ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि चलें, लेट मी नॉट मेक अ टॉल क्लेम, बट एवरी वन नोज़ के मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर हियर। इंडस्ट्रियल एरियों का हाल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें, बिजली भी बड़ी मुश्किल से आप कह रहे हैं कि मसला हल हो गया शायद, तो थोड़ा लोड शेडिंग शायद कंट्रोल में आ जाए। गैस के मसले अपनी जगह, पानी फ़ी गैलन की कीमत भी बहुत महंगी है, पानी मुयस्सर भी नहीं है। इसके मुतालिक बजट में क्या होगा? बजट में बात करेंगे तो वो कहेंगे अबू कहेंगे अम्मी की जिम्मेदारी है। हम यहाँ सिंध हुकूमत के पास आएंगे, वो कहेंगे अबू की जिम्मेदारी है। फिर अब्बू अम्मी आपस में फ़ुटबॉल खेलते रहेंगे और मामला समझ में नहीं आएगा कि किसकी ज़िम्मेदारी कहाँ पर है। अली, इसीलिए कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम यही कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कराची के बारे में शायद सीरियस नहीं है। लगता है ऐसे है कि शायद उनका वोट बैंक यहाँ पे नहीं है, वो इसलिए इससे सीरियस नहीं है, या कोई कराची से दुश्मनी है। नहीं, कि कराची में जब भी इंडस्ट्री कुछ पनपने लगती है तो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जाती है जिससे इंडस्ट्री बैकफुट पे चली जाती है। गवर्नमेंट कह रही है उन्होंने आपका बड़ा मसला हल किया, अमनो अमान। 26 दिनों में जब आपने गैस शॉर्टेज प्रोड्यूस कर देना, गैस देना बंद कर दी KE को, तो आपको बिजली मिलना बंद हुई, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। 26 दिनों में तकरीबन 35 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ, और अब जाके आपको होश आई कि हाँ भाई अब गैस दे दो। क्यों नहीं पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन किया कि ये नुकसान होगा? वाई कुडंट वी फोरसी? जब आपके पास इतनी बड़ी, आप कहते हैं हमने काबिल टीम बिठाई हुई है मईशत को देखने के लिए, तो व्हाई कैंट यू फोर्स देम? वी फोर्स्ड देम, दैट्स फाइनली। वो कल मैंने देखा आपके ताजरों ने एहतिजाज रखा प्रेस क्लब के बाहर, वहां एक ताजर एसोसिएशन, ताजर सनतकार एसोसिएशन के सदर खड़े हुए थे, बाकी 15-20 फैक्ट्री मजदूर, और नारे पे नारा, नारे पे नारा, नारे पे नारा। सर ये क्या हो रहा है? छोटे ताजरान का एक देखा है, कल और परसों तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स जो थे कराची के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वही किया था सर प्रेस क्लब। आप जावेद बिलवानी साहब की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें 7 टाउन एसोसिएशन मौजूद थी, तमाम टाउन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे। चेंबर उसमें इसलिए प्रेजेंट नहीं था कि चेंबर की बेसिक पॉलिसी ये है कि हम हड़ताल के अगेंस्ट है, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है ये शट डाउन के अगेंस्ट हैं, इसलिए कि वो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोक देती है। बिल्कुल हम डायलॉग के फेवर में है कि बात करें। बिरले और रिलायंस, उनको तो जरूरत नहीं पड़ती काले पट्टे बांधने की अपने बाजू पर, इसलिए कि सर इस तरह काम होता है। उसकी वजह यह है कि उनकी गवर्नमेंट्स अलाइव हैं और वो इन तमाम सूरत हाल को देख रहे होते हैं। अगर आपको 26 दिन के बाद ख्याल आया आज प्राइम मिनिस्टर साहब को कि गैस दे दी जाए, तो 26 दिन, मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि 26 दिन पहले क्यों नहीं फोर्स किया गया जब गैस बंद की गई? गैस तो मौजूद थी, फेडरल इदारा है SSGC, उन्होंने गैस क्यों बंद की? अगर उनको पैसों का इशू था तो पैसों का इशू तो आज से 26 दिन पहले भी था। ये 26 दिन पहले उनको क्यों ख्याल आया कि गैस बंद की जाए KE की? उसी की वजह से आपको 500 मेगावाट की शॉर्टेज आई, आपको शॉर्टेज की वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ी, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। नहीं तो यू बिलीव के, देखें वन थिंग नीड्स टू बी क्लियर है, इस बजट के अंदर हाउ डू यू रिजॉल्व दिस इशू? मसला ये है कि इस बजट के डॉक्यूमेंट के अंदर भी तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें एक एलोकेशन हो। जैसे आपको पहले याद होगा, वैसे तो मुशर्रफ साहब आजकल एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी के अंदर, लेकिन उन्होंने तामीर पाकिस्तान, तामीर कराची प्रोग्राम दिया। इस तरह की कोई चीज़ आप भी मांग लें, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स की अपग्रेडेशन के पैसे मांगे
मांगे पैसे, कुछ फेडरल गवर्नमेंट दे, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, काम करें। ये अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है हमारी, और उसमें उन्होंने एग्री किया है कि जो हालत इस वक्त टाउन एसोसिएशंस की है या जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की है कराची में स्पेशली, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने $1 बिलियन ऑलरेडी 2-3 इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए दे दिए हैं, और आगे भी उन्होंने वादा किया है। बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई हु इज द स्टेक होल्डर वेयर? अब प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रियल हब है ये शहर, अब मैंने अगर अपने ऑफिस के बाहर सड़क बनवानी है तो मैं किससे रुजू करूं? नहीं, ऑफिस के बाहर के सड़क, वो बजट कहां से आएगा उसके लिए? इंडस्ट्रियल एरियाज़ की जो डेवलपमेंट है वो आप कराची को यूं देखिए कि इधर 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं मेन। साइट है, फेडरल बी एरिया है, इसी तरह काटी है, इसी तरह लांडी है, इसी तरह साइट सुपर हाईवे है, बकाटी है बिन कासिम में। ये 7 जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इनमें से हर एक की अपनी अपनी एसोसिएशन बनी हुई है। उनके थ्रू अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम खुद हमारे इदारे काम करते हैं तो उसमें कुछ पिलफरेज हो जाती है, पैसे सही जगह पे लगते नहीं हैं। तो अब उन्होंने जो फार्मूला बनाया है वो एसोसिएशन के हवाले कर रहे हैं पैसे, कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट। आप एक हो जाओ ना, सच में आपको बताऊँ, आप लोग एक हो जाओ, सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप लोग एक हो जाएं, एक। आप लोग एक नहीं होते। आई एग्री। हर ताजिर से बात करता हूँ, कहता है अगर मुफस्सिर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, अगर सिराज आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। मतलब एक साथ बैठने को तो आप लोग टेबल के ऊपर तैयार नहीं हैं, तो फिर आप मुझे, आई एम सॉरी, आई एम पॉइंटिंग फिंगर्स, इट्स बैड फॉर मी टू बी सेड। KCCI will always come whenever you will invite us, but what we say that उन लोगों को बुलाएं आप जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं। देखो फिर आपने बोल दिया उन लोगों को, मुझे क्या पता उन लोग कौन है? ये आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको सब कुछ पता है। अब आप टीवी पे नहीं बोलना चाहते तो ना बोलें। क्या करूं, कुछ नज़ाकत है चीज़ों की ऐसी। लेकिन बुनियादी तौर पर क्या है, यही मैं कह रहा हूं कि ताजिर सनतकार एक हो जाएं। यकीन करें एसोसिएशनों के अंदर एका नहीं होगा, आपस में मिलकर बैठेंगे नहीं, कुछ कहेंगे हम तो वहाँ वाले हैं, कुछ कहेंगे हम तो यहाँ वाले हैं। ये जब एक होंगे ना आप, तो फिर गवर्नमेंट आपकी सुनेगी। बिल्कुल एक वो आपके वाले को इधर बिठाते हैं, इनके वाले को इधर बिठाते हैं, आप दोनों की आपस में शिकायत है, आई डजंट मीट आई टू आई, और वो आप उनके साथ इनकी शिकायत कर देते हैं, वो उनके साथ इनकी शिकायत कर देते हैं, वो कहते हैं लगे रहो। दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। देखें, पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करें, बजाय इसके कि मैं इदारे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जाली एसोसिएशंस बना के जो आपकी वाह करें, उनके साथ बैठ के आप चीज़ें डिसाइड करेंगे तो रियल स्टेक होल्डर्स हमारे साथ बोल रहे हैं। तो फिर उनके भी आपके ऊपर अगर कोई मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मुझे आप बता दें मैंने किसी की वाह की हो गवर्नमेंट, अभी पूरे प्रोग्राम में कोई एक लाइन आप मुझे बता दें कि जिसमें हमने गवर्नमेंट को फेवर की हो या उनकी गलतियों को छुपाया हो। नहीं, काम करवाने के लिए कभी कभार उनकी तारीफें भी करनी पड़ती हैं, जाती काम। हम इसमें KCCI इसमें बिलीव नहीं करती। मुफस्सिर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू वर हियर, और आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सामने खुल के, हिस्ट्री के भी मसले मसाइल हमने सामने रखे आपके। आने वाले दिनों के अंदर बजट के ऊपर खुसूसी ट्रांसमिशन भी करेंगे, उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।